Hi everyone, welcome to this new series that we have started from today. Your doubts are answers. So we have gathered so many emails. There were so many students who were asking us so many different questions related to subjects, different subjects in UPSC, and the strategy related to those subjects, the syllabus, the preparation strategy, how to cover the current affairs, how to make notes, etc., etc. So we have decided to create this new series for all of you, and in this new series we will take up each and every mail that we have received from our students and we are going to solve their doubts थ्रू दिस लेक्चर। इस छोटे से सीरीज से के थ्रू हम जितने भी मेल्स हमने रिसीव किए पिछले 8 दिनों में, बिकॉज 8 days बैक ना आई पोस्टेड post on Telegram, on YouTube regarding your doubts. If you have any doubts, you can mail us and then we will get your doubts sorted. So we have now accumulated all those doubts and one by one we are going to share those mails and then we are going to solve their doubts. Okay, I'm assuming that you all must might be relating to these important mails that we have received, because see, the questions are same of every UPSC aspirant: how to target different subjects, how to target preliminary preparation strategy, how to target mains preparation strategy. सब बच्चों का ना डाउट घुमा फिरा के इस एग्जाम में सेम ही होता है कि इस सब्जेक्ट को कैसे टैकल करें, नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स ले या ना ले, कैसे रिवाइज करें, सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें, करंट अफेयर्स कैसे कंबाइन करें, बजट क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। तो हम सारे डाउट्स को एक एक करके सीरीज के थ्रू सॉल्व करेंगे ना, तो आपके भी जो भी डाउट्स होंगे जो आप हमसे नहीं पूछ पाए हो या किसी और से नहीं पूछ पा रहे हो, कोई हेजिटेशन है, तो वो डाउट्स भी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, let's get started. Okay, before we get started now, here's a small announcement, a small information for you. See, Unacademy conducts free ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट एवरी संडे। अनअकैडमी ना हर संडे फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। देखो, इसमें आपको कुछ पे नहीं करना। दिस इज नथिंग टू यू शुड बी बॉदर्ड अबाउट दैट वी हैव टू पे दिस मच अमाउंट दैट मच अमाउंट। दिस इज अ फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट एंड इट्स अ स्कॉलरशिप टेस्ट, सो यू स्टैंड अ चांस टू विन अ स्कॉलरशिप फ्रॉम अ पूल ऑफ ₹4 crore। तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, आपकी तैयारी भी हो जाएगी, साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिविजन भी हो जाएगी और आपको चांस मिल सकता है स्कॉलरशिप जीतने का। ठीक है, तो इस बार ना इस संडे को जो स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रीलिम स्पेशल है, तो करंट अफेयर्स सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है। इवन इफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन ना, आई वुड सजेस्ट यू टू गिव दिस स्कॉलरशिप टेस्ट एट 11 AM in the morning on Sunday. Okay, because see, you will understand what are the type of questions that UPSC is asking in prelims, because हमने prelims के पैटर्न पे ही ये स्कॉलरशिप टेस्ट तैयार किया है। So what you have to do, you have to click on the link given below in the description box, then you have to use the invite code ARPITA10 and enroll yourself. संडे को 11 बजे सुबह लाइव टेस्ट होगा। ठीक है, और टेस्ट के बाद ना आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिलेंगे, तो आपको पता चलेगा आपने कहाँ मिस्टेक करी, कहाँ आपको कैसे रिवाइज करना है, क्या एफर्ट डालना है, क्या काम करना है। ठीक है, सो डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस यूपीएससी कॉम्बैट अनअकैडमीज free initiative for you to help your preparation become more and more fruitful and stronger. So let's take the first mail for today from Sai Kumar. Sai Kumar says, currently I am pursuing BTech final year. I am preparing for UPSC CSE. When I was reading Indian economy, it looks like terrible to understanding some topics. Would you like to give me a guidance for Indian economy and also for current affairs note making? Thank you. Okay, so Sai Kumar is saying that he has some problems regarding Indian economy. He wants to know the resources, okay, and he wants to know how to go about this subject, and also he is asking for a little guidance for the current affairs note making, etc. So देखो, I would just open up the Indian economy part, because many students have sent me the same mail. Indian economy कैसे पढ़ें, क्या होता है, कितना पढ़ें, क्या UPSC एक्सपेक्ट करता है। First thing you should know is that UPSC has given a clear cut syllabus for Indian economy. यूपीएससी ने एक बहुत ही प्यारा सा क्लियर कट सिलेबस दिया है अपने वेबसाइट पे इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। सो फर्स्ट यू हैव टू डू इज डाउनलोड द सिलेबस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको पहला स्टेप बता देती हूँ। स्टेप नंबर 1 इज इन योर प्रिपरेशन डाउनलोड द सिलेबस। ये आपको मिल जाएगा यूपीएससी की नोटिफिकेशन से और वेबसाइट से। ठीक है, तो ऐसा कुछ लोग रूमर फैलाते हैं यूपीएससी क्लियर नहीं है, कुछ भी पूछ लेता है। यूपीएससी ने बड़ा क्लियर कट अपना वेबसाइट पे सिलेबस दिया है। ठीक है, तो आपको रूमर्स की नहीं सुननी है, वेबसाइट पे जाओ, सिलेबस, क्योंकि ये आपका नोडल एग्जाम टेकिंग पोर्टल है, तो यहाँ से आपको सिलेबस और सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो फर्स्ट टेक द सिलेबस।
Then in UPSC's notification na, they have very specifically cleared out the syllabus for prelims and the syllabus for mains. उन्होंने बहुत specifically ना mains, prelims और optional का syllabus clear cut बताया हुआ. Even the personality test interview round also they have mentioned it what they expect in the personality round in their notification. तो जब हम prelims के syllabus की बात करते हैं ना तो focus area उन्होंने क्या बताया है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर आपको ग्रोथ किससे पता चलती है, जीडीपी से, नेशनल इनकम से, ओके, एंड व्हाट इज इकोनॉमी एंड व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, ओके. सो ये सारी बातें ये बताते हैं, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. देन व्हाट इज मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी. नाउ व्हाई यू हैव टू स्टडी ऑल दिस, बिकॉज सी if you clear this exam you might be getting the post of an IRS officer, Indian Revenue Services. So if you are selected as an IRS officer then what will happen, as per your rank you are given the designations ना, आपको पता है ना ये बात. आप ऐसे ही नहीं कि मैं तो IAS बनूंगा, आपके रैंक के हिसाब से आपको डेजिग्नेशन मिलती है. तो आपके रैंक के हिसाब से आप कैसा परफॉर्म करते हो लबासना में, उस हिसाब से आपको, अगर मान लीजिए IAS की डेजिग्नेशन मिलती है तो आपको इकोनॉमी का ना बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है. IAS की आपको डेजिग्नेशन मिलती है तो आपको इकोनॉमी का आइडिया होना चाहिए, ठीक है. मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, आप पॉलिसी मेकिंग में बैठोगे आगे जाकर तो आपको पॉलिसी मेकिंग का आइडिया होना चाहिए. तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ते हो ना, ग्रीन इंडेक्स, देन द वेरियस इंडिसेस, वेरियस टैक्सेस एटसेट्रा, इसके कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में क्लियर हो तो आपको फाउंडेशनल नॉलेज स्ट्रॉन्ग हो तो आप पॉलिसी मेकिंग में ज्यादा अपना इनपुट दे पाओगे, ठीक है. सेकेंडली पॉवर्टी के बारे में पढ़ना पड़ता है, बिकॉज देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मेजरमेंट्स ना टू कैलकुलेट पॉवर्टी, कैलकुलेट द स्टेटस ऑफ पॉवर्टी. देन देर आर डिफरेंट इरेडिकेशन, पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स ऑल्सो. इफ यू डू नॉट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी, हाउ विल यू plan policies regarding poverty eradication programs in your districts. अगर आपको पॉवर्टी का बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो आप किस बेसिस पे प्लान करोगे अपने डिस्ट्रिक्ट में, पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स में किस बेसिस पे लोगों को सहभागी बनाओगे, ठीक है. ट्राइबल राइट्स और इश्यूज के बारे में नहीं पता होगा और मान लो ट्राइबल एरिया में आपकी पोस्टिंग हो गई तो कैसे हैंडल करोगे. सो सी वॉट एवर यू आर स्टडिंग राइट नाउ, स्टडी keeping in mind that you have to implement it in practical, in on your field. इस तरीके से पढ़ो जो भी अभी पढ़ रहे हो कि आपको प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना है आगे जाके, ठीक है. तो सिर्फ रट्टाबाजी नहीं करनी. देन इंक्लूजन. नाउ नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन की काफी बात करती है. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन टॉपिक काफी आया है पिछले 5-6 सालों से, काफी न्यूज में है. तो इंक्लूजन के बारे में पता होना चाहिए. व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, व्हाट आर द रीसेंट इनिशिएटिव्स दैट गवर्नमेंट हैज टेकन टू propagate financial inclusion. Then you know about the census exercise के बारे में पता है. Since 2019 यार सेंसस हैज बीन इन न्यूज. अगर आपको नहीं पता इसका मतलब आपके करंट अफेयर्स काफी वीक है, नहीं पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर. तो मेक श्योर कि आप करंट अफेयर्स पढ़ो, क्योंकि सेंसस, देन जो CAA, NPR, ये सारा रिलेटेड है डेमोग्राफिक्स से. तो आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो व्हाट इज सेंसस, व्हाट इज NPR, व्हाट इज CAA, हाउ डेमोग्राफिक्स आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफिक्स ओनली द वेलफेयर स्कीम्स आर फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट. सेंसस का डेटा गवर्नमेंट के पास होता है ना, उसी के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट अलग अलग कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स निकालती है, ठीक है. और गवर्नमेंट का ही पार्ट आप बनने वाले हो, क्योंकि प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में तो आप ही बैठोगे ना, तो आपको डेमोग्राफिक्स का आइडिया होना चाहिए. देन फिस्कल पॉलिसी का आइडिया होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कैपिटल रिसीट, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर, बजट. बिकॉज सी इफ यू डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट बजट, I am afraid how will you do the policy making in the future, okay. So that is why you should have an idea of what is capital account, your current account, tax revenue, etc. Social issues के बारे में you should know. The education policies are there, sanitation related measures and welfare schemes are there, drinking water से related policies है हमारे पास, regional cooperation, international trade issues, health policies. Because of this pandemic there have been so many health initiatives that the government has taken. So these are social issues that you have to study. Then you should also focus on different schemes launched by the government and reports also. क्योंकि in the reports you will get the idea of the current status of Indian economy and how to improve it. तो नीति आयोग की रिपोर्ट, WHO की रिपोर्ट, WTO की रिपोर्ट, ब्लैक मनी से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट है, इंडिया की पॉलिसीज, नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज, इनका आइडिया आपको होना चाहिए. दिस इज द बेसिक. See, this is the basic that you should, not just you, every citizen of this country should know about. सिर्फ आप नहीं,
हर सिटीजन को पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ये सब चीजें नहीं जानोगे आपको पता कैसे चलेगा ऑन फील्ड आपकी कंट्री में हो क्या रहा है, आप अवेयर कैसे होगे, जागरूक कैसे होगे। हमें सेल्फिश होके थोड़ी जीना है, वी शुड नॉट नेवर बी सेल्फिश। इफ यू वांट टू थिंक अबाउट अदर्स, अबाउट द सोसाइटी, इफ यू वांट टू गिव or share to with the society, you should have a basic understanding of all these terms, all these topics. Okay, and it's not just UPSC, any other government exam that you give, Indian economy में these topics you should be aware of. Okay, so this is about prelims. ये तो prelims की बात हो गई along with current affairs on each of these topics. Okay, now coming towards mains. So what are the important areas which you should focus on in mains? See, syllabus में तो दिया ही हुआ है, but syllabus को आपको PYQ के साथ सिंक में लेकर आना है, लिंक करना है। सो व्हेन इट कम्स टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिम्स और मेंस के लास्ट 4 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आपको उठाने हैं। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग लास्ट 10 इयर्स बिकॉज सी ऑनेस्टली बी रियलिस्टिक, लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आप एकदम से नहीं कर सकते हो, तो आप ब्लॉक्स पे उठाओ क्वेश्चन पेपर्स, या तो लास्ट 2 इयर्स के उठाओ, उन्हें पहले पढ़ो समझो सॉल्व करो, फिर नेक्स्ट 2 इयर्स के उठाओ, उन्हें पढ़ो समझो और सॉल्व करो। एकदम से 10 साल के क्वेश्चन पेपर गैदर करके आपका मोटिवेशन वही मर जाएगा पूरा बंडल देखकर, बिकॉज यू हैव टू स्टडी द बुक्स ऑल्सो, यू हैव टू स्टडी अदर रिसोर्सेज ऑल्सो, एंड देन यू विल सी अ बंडल ऑफ 10 years previous year question paper, both prelims and mains. You will get distracted and demotivated. So study in blocks. Okay, so pick up last 2 years or last 4 years pre and mains question papers and then try to go through them. Do not just jump on solving them, because एक बारी में देखो आप क्या, कोई टॉपर को भी कोई क्वेश्चन पेपर दिखा दो, उसको भी सारे क्वेश्चंस नहीं आते होंगे, 100 के 100 क्वेश्चन कोई देकर नहीं आता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, समझना है कि फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस आर कमिंग, फ्रॉम विच करंट इवेंट, फ्रॉम विच करंट हैपनिंग इन द कंट्री द क्वेश्चंस आर कमिंग, फ्रॉम विच एरिया द क्वेश्चंस आर कमिंग। बजट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इंडेक्स से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, या नेशनल इनकम से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इस हिसाब से अपना रिपोर्ट बनाओ। ठीक है, सो इन मेंस इंडियन इकोनॉमी में प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, दीज आर द फोकस एरियाज, इंक्लूसिव ग्रोथ, बजटिंग, क्रॉपिंग पैटर्न्स इन द कंट्री, बिकॉज सी ऑब्वियसली क्रॉपिंग पैटर्न्स आर रिलेटेड टू इकोनॉमी। जब एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करता हमारी इकोनॉमी डाउन होती है, याद है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, अभी फार्म लॉज के ऊपर इशू चल रहा है, वो भी पढ़ना है आपको। These are the current topics. Food processing related industries, ट्रांसपैट के ऊपर कितने न्यूज में अभी टॉपिक्स आए, हमने हिंदू न्यूज़पेपर में कितना डिकोड किया है, तो वो पढ़ना है। लैंड रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन क्या है, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, ऑल दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स, ऑल दीज टॉपिक्स यू हैव टू फोकस ऑन, बिकॉज इसमें क्या है, आपको अब एक्सपैंड करना है नॉलेज अपना। ओके, अब आपको सब्जेक्टिवली आंसर लिखने होंगे मेंस में, प्रीलिम्स इज ऑब्जेक्टिव, मेंस इज सब्जेक्टिव, सो नाउ यू हैव टू expand your opinion, your knowledge that you have acquired, that you can do if you study in detail all these areas including the current affairs on these topics. इसी टॉपिक पे जो करंट अफेयर न्यूज़पेपर में आता है ना, उस पे ध्यान देना है। हाउ टू स्टडी द करंट अफेयर्स फॉर इंडियन इकोनॉमी, सिंपल, go through the topics and link those topics with the current events which is going on around you, and that is how you will pick up the right current affairs. हर टॉपिक के लिए टॉपिक से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं न्यूज में वो पढ़ना है। क्रॉपिंग पैटर्न से रिलेटेड क्या करंट अफेयर चल रहा है, yesterday what we discussed, we talked about turmeric, okay, so that was related to this topic in Indian economy. The farm laws going on, the palm oil national program on palm oil, that is related to D&E topic, okay, the trans fat issue related to topic F, okay, देन अभी आप देख रहे हो लैंड रिफॉर्म्स में ड्रोन्स का यूज हो रहा है, दैट इज रिलेटेड टू टॉपिक जी। सो दैट इज हाउ यू रिलेट द करंट अफेयर्स विद द सिलेबस एंड देन यू स्टडी होलिस्टिकली। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द रिसोर्सेज, हाउ टू गो अबाउट दिस, सी नाउ वी हैव अंडरस्टूड द सिलेबस, द PYQs, नाउ हाउ टू start with the NCERTs, because when your foundation is strong everything becomes very easy. जब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है ना, सी इफ यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई, इफ यू नो हाउ टू डिवाइड, इफ यू नो हाउ टू plus, if you know how to subtract, if you know how to do the fractions, how to solve the fractions, okay, then it will become very easy for studying the other complex topics like linear equations, like algebra, like rationalization, factorization. ये आपके लिए easy हो जाता है अगर आपको ये basic चीजें आती है. If you know the basic things, then other complex topics becomes very easy for you.
topics are complex for those people who have very weak foundational knowledge. Foundational knowledge weak होती है तो complex issues ना और ज्यादा complex लगने लगते हैं, और जिनकी foundation strong होता है ना उनके सामने कोई भी topic डाल दो उनके लिए वो easy हो जाता है क्योंकि उनका base strong है. So first develop your base. NCERT की books उठानी है 10th 11th और 12th की. ओके, 10th 11th 12th की एनसीईआरटी आप कंप्लीट कर सकते हो अगर आप डेडिकेटेड और डिसिप्लिन हो, आराम से 2 हफ्ते के अंदर. विद इन 2 वीक्स यू कैन वेरी इजीली, अब 2 वीक्स भी मैं लंबा समय दे रही हूँ, आप 1.5 हफ्ते में ही कंप्लीट कर सकते हो. सो यू कैन कंप्लीट एनसीईआरटी विद इन 1.5 to 2 weeks in the Indian economy. Then you can pick up either Ramesh Singh or Indian Economy by Sanjeev Verma. I would suggest Sanjeev Verma because Sanjeev Verma holistic है pre plus mains के लिए. Ramesh Singh is just for prelims. Okay, so I will recommend Sanjeev Verma book. Then you have to refer to ministry websites. Okay, जैसे कि Power Ministry, Water Ministry. Okay, तो टूरिज्म मिनिस्ट्री, तो इनकी जो वेबसाइट्स है ना आप वो रेफर कर सकते हो अपने करंट अफेयर्स के लिए, बिकॉज ऑल द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स, प्रोग्राम्स, वेलफेयर स्कीम्स दे आर लॉन्चिंग, यू कैन गेट अ होल्ड ऑफ इट. Even if you do not visit the websites, na, no issues. You are reading the newspaper, that is enough. Then economic survey, ये आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना. Economic survey, that means it's a survey of the current Indian economic condition. In economic survey क्या होता है, अभी इंडिया की इकोनॉमी की जो कंडीशन चल रही है ना उसका एक सर्वे आपके सामने, उसकी एक पिक्चर आपके सामने प्रस्तुत की जाती है कि ये प्लान हमने लॉन्च किए थे, these were the programs and policies we launched, this is how they performed, this is how well they performed, this is how bad they performed, this much people were targeted, this etc etc. Okay, so you should have an idea of what happened during the last 1 year in your country and how well the policies and programs performed. So economic survey you should study it, last 1 year का आपको पढ़ना है, ठीक है. देन बजट, ठीक है, बजट पढ़ना जरूरी है. हाउ योर गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सॉल्व द इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रॉब्लम्स इन योर कंट्री, हाउ योर गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एलोकेट फंड्स टू डिफरेंट प्रोग्राम्स दे आर लॉन्चिंग. यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट इट ना, एज एन अवेयर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. आप एक जागरूक सिटीजन हो, आपको पता होना चाहिए आपके पिता का, आपकी माता का, आपका जो टैक्स का पैसा जा रहा है उसको कैसे एलोकेट कर रही है गवर्नमेंट अलग अलग प्लान्स पॉलिसीज में. ठीक है, आपको आइडिया होना चाहिए. ये नहीं हम तो टैक्स भर रहे हैं जी, टैक्स भर रहे हो बट वो पैसा यूज हो भी रहा है, कहाँ यूज हो रहा है उसका प्रमाण दो, वो बजट में पता चलता है. ठीक है, सो इन द बजट इट्स ऑल अबाउट द expenditure, income of the government, how they are planning to mobilize the resources etc. So you should have a clear understanding of the budget. बजट की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए. तो बजट जो जिस अटेम्प्ट का आप एग्जाम दे रहे हो उस अटेम्प्ट का बजट पढ़ के जरूर जाना. उससे 1 साल पहले का लास्ट 2 बजट जो है उनको अच्छे से पढ़ के जाओ. ठीक है, देन ARC रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो, बट अगेन इफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर ना thoroughly daily with discipline, then you can skip the ARC reports. ठीक है, in the Indian economy. PIB website, Press Information Bureau website, again if you are reading the newspaper regularly without any delay you can skip PIB, but अगर आपका न्यूज़पेपर में बैकलॉग हो जाता है या न्यूज़पेपर मिस हो रहा है ना तो PIB वेबसाइट जरूर पढ़ना. And in the newspapers you can pick any one newspaper यार, either Indian Express or Hindu or Economic Times, कोई भी एक न्यूज़पेपर उठा लो, because all these 3 newspapers are targeting the government exams and all these 3 newspapers cover everything that is going on in the country. आज Indian Express में जो न्यूज़ है वो कल हिंदू में आ जाएगी, कल हिंदू में जो न्यूज़ है परसों Economic Times में आ जाएगी. तो ये न्यूज़पेपर ना शफल करके सारे न्यूज़ कवर करती हैं. तो न्यूज़पेपर कोई एक ही चुनो. I have seen students wasting their entire time in covering 2 to 3 newspaper in a day, and that is how they miss the syllabus. तो इस वजह से सिलेबस पूरा नहीं होता, कंफ्यूजन और डर बन जाता है. तो एक न्यूज़पेपर उठाओ और उसको डिसिप्लिन के साथ डेली पढ़ो. दैट इज द की टू कवरिंग द करंट अफेयर्स. नाउ द क्वेश्चन ऑफ साई कुमार वाज करंट अफेयर नोट मेकिंग. दैट इज completely up to you. If you wish to take notes, you can take notes either in your registers or offline mode or ऑनलाइन वन नोट का जो एवर नोट का जो वन नोट का प्लेटफॉर्म है आप उस पर अपना ऑनलाइन नोट्स ले सकते हो इफ यू हैव लैक ऑफ टाइम, और यू कैन टेक नोट्स ऑन इन योर रजिस्टर. वैसे ऑनलाइन नोट्स लोगे तो ज्यादा सही रहेगा. उसमें क्या होता है आप एडिट कर सकते हो, कोई चेंज हुई है न्यूज, इफ द न्यूज हैज चेंज और इफ द पॉलिसी हैज चेंज यू कैन एडिट इट ऑनलाइन. ओके, अब रजिस्टर में तो नहीं कर सकते ना, पेजेस ही ऐड होंगे. सो आई वुड सजेस्ट कीप एन ऑनलाइन नोट ऑफ वट एवर यू आर स्टडिंग. ओके, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू सिलेबस. सिलेबस के बाहर जाके कोई भी चीज का नोट मत लेना, वरना वो आपका बल्क बढ़ा देगा. ठीक है, so note making, देखो I would suggest note making. Why? Because see, when you take notes you understand on a different level. जब आप नोट्स लेते हो ना
you really grasp the information when you take notes. When you just study and stay dependent on the current affair magazines and compilations, then you just end up cramming things. जब आप सिर्फ compilation पे dependent होते हो ना, आप रट्टा लगा रहे होते हो. But when you are taking notes, you understand the article, you research yourself, and then you take down the notes. So, one time learning is possible in note making. Then you can revise very easily later on. Plus, in note making, please do not copy paste. Okay, you can create mind maps in note making. You can create small charts. Keep it simple and small and concise. Do not copy paste from the newspaper. And keep it very simple. Very simple language में, even if you want to take notes in your regional language, ना do that. You should understand what you are writing, what you are taking note of. आपको बस समझ आनी चाहिए, because when you understand ना, whatever question if I throw it, in front of you, you can answer it. But when you cram things, you cannot answer any question. जब आप रट्टा लगाते हो ना, मैं आपके सामने इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछूं, आप नहीं आंसर कर पाओगे. पर जब आप चीजों को समझते हो, मैं चाहे कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे प्रॉपरली समझा दोगे. ओके, अंडरस्टूड. सो this is the syllabus. This is how you have to go about the NCERTs. की संजीव वर्मा बुक आप 1 महीने में या 1.5 मंथ्स में कंप्लीट कर लोगे. एंड अलॉन्ग विद दैट NCERTs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको रेफर करते रहना है, ठीक है. एंड इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, बजट पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है. ये चीजें तो आपको फॉलो करनी ही करनी है. ओके, सो इफ यू वांट टू फिनिश द सिलेबस ऑफ इंडियन इकोनॉमी ना, maximum 2 months you will end up finishing the syllabus if you are dedicated and disciplined. अगर आप disciplined हो ना, तो आप 2 महीने के अंदर इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस बहुत आसानी से बोथ प्री और मेंस का कवर कर सकते हो, ठीक है. एंड देन व्हेन you study the topics ना, for example let's say you have completed 3 topics today. Search the questions on these 3 topics in the mains question paper and prelims question paper last 4 years. If you find even one question, try to answer it. Because you have studied these topics and you have completed it, understood it, you will be in a position to answer any question on this topic. मान लीजिए आज आपने GDP के बारे में पढ़ा, तो क्या करो, GDP को समझने के बाद अच्छे से उसके ऊपर लास्ट 4 साल के जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसमें क्वेश्चन देख लो. कोई भी एक क्वेश्चन आता है ना, उसको सॉल्व कर लो, क्योंकि आपने टॉपिक अभी अभी पढ़ा है तो आप सॉल्व भी कर पाओगे. आपके पास कंटेंट होगा ना. हाउ यू राइट आंसर्स? Only when you understand the concept you can have the content. When you cram the concept, you will never have a content. So understand, only then you will have the words to write, the correct words to write, and an opinion to frame. Okay, so this is how you have to go about Indian economy. So I hope your doubts are clear, Sai Kumar. Let me know in the comment section if you have any other doubt. We will come up with another mail tomorrow. So on this note, we are wrapping up this lecture. I hope this lecture was helpful for all of you. तो इसी नोट पे हम इस लेक्चर को रैप अप कर रहे हैं. थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे.